Hello, dear students. Okay, so till now we have seen two beautiful experiments. ठीक है, जिसमें पहले में हमने देखा कि ग्रिफिथ ने 1928 में किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया एंड ही शोड दैट आर स्ट्रेन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस स्ट्रेन। और उसकी वजह से उसने ये बोला कि देयर इज समथिंग which is responsible for this transformation, and this should be genetic material, and he termed it as transforming principle, right? Then we have seen that how a group of three scientists, after about uh, 10 to 20 years, Avery, MacLeod and McCarthy, this group actually further refined the experiments of Griffith in a way that they took the heat killed S strain and they purified different components from it, and then injected these different components along with the R strain to see whether the transformation was happening or not, right? उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने उसमें एक स्टेप और ऐड किया जब ये देखा कि इट वाज डीएनए विच वाज कॉजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स लिए जो प्रोटीन डैमेजिंग एंजाइम्स हैं, डीएनए डैमेजिंग एंजाइम्स हैं, आरएनए डैमेजिंग एंजाइम्स हैं। तो उसकी बेसिस पे उन्होंने देखा कि डीएनए डैमेजिंग एंजाइम्स वर actually inhibiting the process of transformation. This is how they had conclusively proved the transforming material of Griffith's experiment to be DNA, right? बट हमने ये भी डिस्कस किया कि इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पूरी तरह से लोग रेडी नहीं थे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? तो बाद में 1952 में एक ग्रुप था हर्शी का, ठीक है, अल्फ्रेड हर्शी एंड उसकी स्टूडेंट, लेडी स्टूडेंट मार्था शेज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसको पब्लिश किया 1953 में, सॉरी 1952 में। 1952, if you remember, it is just 1 year before the publication of double helical model of structure of DNA। ठीक, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए स्ट्रक्चर का पब्लिश किया था नेचर जर्नल में 1953 में। उससे एक साल पहले हर्शी एंड शेज ने जो है ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी डिबेट चल रहा था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, वो कंक्लूसिवली रिजॉल्व हो गया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हर्शी एंड शेज का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रिफिथ ने लिया था एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, वो क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है। उसके दो स्ट्रेन लिए थे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। It's very small also because all prokaryotes are very small as compared to eukaryotes, almost 10 times smaller in the size, right? Then they also don't have the nucleus, so they have nucleoid in their structure. ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। So bacteria is actually a simple organism. So Hershey and Chase wanted to study using even more simpler organism. So for this, they took another organism which is much simpler than the bacteria. So bacteria or prokaryotes, these are very small organisms, but they took viruses. Viruses, as you know, they are neither living organisms nor they are dead organisms. When they are outside a cell system, they are dead organisms, they are dead material. But when they enter a cell, when they infect a particular cell, they enter inside the cell and they become or behave like a living organism.
and they grow and multiply, and finally they infect other cells also. So the viruses are very simple structures, or we can say organisms in a limited sense. So there are certain organisms which are called as bacteriophages. Okay, so what are bacteriophages? Bacteriophages are a kind of special kind of viruses, okay, which actually infect the bacteria. So Hershey and Chase took, instead of bacteria, they took the key organism to be virus which infects the bacteria. So they took both the things. Okay, they, so Griffith had taken bacteria which was infecting the mice. Okay, so they had to pneumonia bacteria and mice which was being infected. Now here they took the bacteria which was being infected with bacteriophage virus. Okay, and which bacteria they took? They took actually E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria, the simple bacteria. So let me write it for you. E. coli bacteria, bacteriophages, and then E. coli bacteria, as you all know. So bacteriophages, these are very simple. So what is their chemical composition? They have an outer protein coat. Okay, inside that protein coat there is a genetic material which may be made up of DNA or it may be made up of RNA. So this information was known by that time of the 1900, after the 1940s it was known. So people knew that okay, these are very simple organisms, contain only two kinds of the chemicals. So what they thought, that if they can identify that which material was entering the bacteria upon infection. Okay, because if you remember in the Griffiths experiment also, what he had done, he had killed the S strain, right? Then he was trying to see whether the infection is taking place or not. Then एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी ने क्या किया, उन्होंने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, एस स्ट्रेन को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्योरीफाई किया बायोकेमिकली, और फिर उसको इसके साथ इंजेक्ट किया। ठीक, तो उसी तरह से इन्होंने अब ये जानना चाहा कि जो वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है तो इस वायरस का कौन सा कंपोनेंट अंदर एंटर हो रहा है। ठीक, तो इफ़ यू वांट टू नो दैट विच मटेरियल इज एंटरिंग इनसाइड द बैक्टीरिया अपॉन infection of the phage particle or phage material, you have to be able to distinguish whether it is a protein or DNA. So how you will distinguish? आप दोनों में कैसे फ़र्क करोगे, कैसे पहचानोगे कि प्रोटीन एंटर किया है या बैक्टीरिया एंटर किया है? तो उसका एक सिंपल मेथड ये होगा कि आप उसको, दोनों चीज़ों को किसी चीज़ से लेबल कर दो। ठीक है, प्रोटीन को किसी एक चीज़ से लेबल कर दो और डीएनए को किसी और चीज़ से लेबल कर दो। अगर अब हम लेबलिंग की बात करते हैं तो लेबलिंग के लिए हमको पहले एक चीज़ और समझनी चाहिए। देखिए, प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। ठीक है, दे आर दी पॉलीमर्स ऑफ दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी प्रोटीन्स। Similarly, the DNA is a polymer of the nucleotides. So it is a polymer of the nucleotides and nucleotides are monomer of the DNA. ठीक, तो अमाइनो एसिड्स किस किस चीज़ से बने होते हैं, उसमें कौन से एटम्स होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं लास्ट जो है बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड में ये होता है, राइट। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कहाँ पे, जो NH3 ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर होता है। ठीक है, जैसे कि सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, मिथायोनिन एक अमाइनो एसिड है, इनमें सल्फर होता है। ठीक है, लेट मी राइट इट फॉर यू।
cysteine and methionine. These are sulfur containing amino acids. तो आप देख सकते हैं कि कुछ कम अमीनो एसिड्स जिनमें सल्फर मैंडेटरली प्रेजेंट होता है, and you also know that all the proteins are made up of only these 20 kinds of the amino acids, and out of these 20, two amino acids have sulfur. That means 10% of the amino acids have sulfur. So it is almost 100% possible that all the proteins will have certain amount of the sulfur present inside them, right? Now if we say DNA or nucleotides, what are the components? सबसे पहले शुगर होता है, तो शुगर में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद क्या होता है? शुगर, तो शुगर का बैकबोन होता है और फास्फेट का, तो फास्फेट में फास्फोरस ग्रुप होगा, फास्फेट ग्रुप होगा और ऑक्सीजन होगा। और नाइट्रोजन बेसिस में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। सो दिस इज हाउ आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स में या डीएनए में ये एटम्स हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। और प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब आप इसको अगर ध्यान से देखिए, तो अगर आप डीएनए और प्रोटीन में डिफरेंस पता करना चाहते हैं, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट दैट इट इज एक्चुअली द सल्फर एंड फास्फोरस which are different in the two kinds of the molecules. So if you somehow can label these phosphorus and sulfurs in these molecules, then you will be able to label these chemicals differentially. ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे लेबल किया जाए? आपने ऑलरेडी आइसोटोप्स पढ़े होंगे। आइसोटोप्स में क्या होता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो आप एटॉमिक मास की बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और कुछ में एटॉमिक मास के एडिशन में एक और डिफरेंस होता है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का डिफरेंस होता है। तो अगर कोई केमिकल या कोई एटम है, कोई एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, तो दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी वेरी इजीली डिस्टिंग्विश्ड or identified. So what these people, Alfred Hershey and Martha Chase, did that they took radioactive phosphorus, which is P32, and radioactive sulfur, which is S35. Okay, so radioactive phosphorus and radioactive sulfur was taken to distinguish between the DNA and protein. Okay, now ग्रिफिथ ने क्या किया था? जो बैक्टीरिया था उसको कल्चर करने के लिए कल्चर प्लेट यूज़ किया था, ठीक। तो इसी तरह से इन्होंने भी कुछ मेथड यूज़ किया, हम उसमें डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपका फाज पार्टिकल है, बैक्टीरियोफाज है, उसको आपको ग्रो करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको उससे इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को। तो इन्होंने ये सोचा कि जब हम उस फाज को ग्रो कर रहे हैं, तो उस फाज को जो आप मटेरियल या मीडिया, न्यूट्रेंट मीडियम जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेट ले लिया फाज, बैक्टीरियोफाज का, जिसको P32 पे ग्रो कराया, और दूसरा सेट ले लिया जिसको S35 पे ग्रो कराया। तो जिस बैक्टीरियोफेज को आप P32 पे ग्रो कराएंगे, उसका क्या होगा? उसका डीएनए जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो जाएगा। और जिस बैक्टीरियोफेज को आप S35 पे ग्रो कराएंगे, मतलब S35 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराएंगे, उसका क्या होगा? प्रोटीन्स जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यू आर एबल टू सेलेक्टिवली लेबल द प्रोटीन और डीएनए, राइट? ब्यूटीफुल, राइट? सो दे डिड एक्चुअली दिस थिंग ओनली। तो ग्रो करने के बाद इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, एस्केरिकिया कोलाई, और उसके बाद आप ये फिगर देखिए, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिगर नंबर 6.5। तो ये फर्स्ट पैनल में बैक्टीरिया जो है, ये देखिए, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है वो
प्रोटीन उसका लेबल कराया गया है। आप रेड कलर से देखिए, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन है, जो लेबल्ड है, लेबल्ड सब्सटेंस इज शोन इन द रेड कलर। ओके। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, वो नॉर्मल उसमें होगा, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह से जो दूसरा वाला ग्रो कराया गया है P32 पे, उसमें क्या होगा, excuse me, I think it's not very, the picture is not coming very clear, so let me, I hope it is better now. Okay, so now this panel, this contains the DNA which is radioactive labeled. So these two kinds of phages you have. Now what what these people did, that they performed two different sets of experiments in the same way. So first they took these bacteriophages, they allowed them to infect the E. coli bacteria. So when you add the bacteriophage to the bacteria, they will go and attach to the bacterium. After some time, what will happen? They will release some chemical to digest this outer capsule or cell wall of the bacterium, and after that some material will enter inside the bacteria. That material will go inside the particular cell, that is bacteria here now, और उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करने के बाद जो वायरस का जो भी कुछ मटेरियल एंटर हुआ है वो इस तरह से बिहेव करेगा कि एज इफ दिस सेल इज द सेल ऑफ द वायरस. So there this virus will start growing and it will start multiplying, and eventually it will make lot of virus particles out of that bacteria. ये नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन में. ठीक है. तो यहाँ पे जब इसने इन लोगों ने जो बैक्टीरियोफेज था उसको ऐड किया बैक्टीरिया के साथ, and they allowed it to settle down or to get attached to the bacteria for some time, and after that what they did is that they did blending, okay, और एजिटेशन. तो जब आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, जो कि पहला स्टेप है, यानी कि वहाँ से अटैच होगा सेल वॉल जो है, उसको वो क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, डिग्रेड करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसका सब कुछ मटेरियल अंदर चला जाएगा, यानी इन्फेक्शन हो गया. उसके बाद आपने ब्लेंडिंग किया. ब्लेंडिंग या एजिटेशन का मतलब क्या, आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जो मिक्सी होती है हमारे घरों में, ठीक है, इस तरह का एक मशीन होता है, उसके अंदर आप इसको डाल करके और उसको खूब तेज़ी से एजिटेट कीजिए, घुमाइए, और उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर जर्क लगेगा. तो उस एजिटेशन की वजह से क्या होगा कि जो बाहर जो अटैच्ड हैं पार्टिकल्स, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के का जो बाहर का पार्टिकल्स है, दिस सब्सटेंस, ओके, दिस इज कॉल्ड एज घोस्ट पार्टिकल. घोस्ट, GHOST, घोस्ट पार्टिकल, द सब्सटेंस ऑफ द वायरस विच remains outside after the genetic material enters inside the infected cell is called as ghost particle. The empty capsule, ठीक है, is called as ghost particle. Empty capsule is called as ghost particle. तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, फिर ब्लेंडिंग कर दिया, यानी एजिटेशन कर दिया. एजिटेशन करने के बाद तो ये बाहर आ जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, बैक्टीरिया को छोड़ देगा और बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएगा. अब इसको आपको सेपरेट करना है, मतलब सोल्यूशन में तो सेपरेट हो गया, लेकिन अब इसको आपको फिजिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको आपको सेपरेट करना है, इसको पहचानना है. वो कैसे करोगे, उसके लिए एक ब्यूटीफुल टेक्निक होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ. इसमें क्या करते हैं कि जिस चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करना होता है उसको आप लेकर के फिर ऐसे ऐसे घुमाते हो, ठीक है, खूब तेज़ी के साथ घुमाते हो. यानी एक टेस्ट ट्यूब है अगर मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर आपने उस सब्सटेंस को रख दिया और उसके बाद उसको आप घुमाओगे,
ठीक। और जब आप उसको स्पिन करोगे, खूब तेज़ी से जब स्पिन होगा, तो उस पर रेडियो सॉरी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगेंगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, not centripetal, because of the centrifugal force, the denser material or the heavier material will settle down and lighter material will settle towards a little upside. Okay, तो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या हुआ कि ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ये लाइटर मटेरियल होता है, तो ये ऊपर की तरफ रह जाएगा, सुपरनेटेंट जिसको हम बोलते हैं उसमें आ जाएगा। और ये बैक्टीरिया बड़ा पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक। इसको आइए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना के समझाता हूँ कि आपने ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया भी है और बैक्टीरियोफेजेस भी हैं, ये सब मिक्स्ड है। आपने इसको ब्लेंडिंग कर दिया, एजिटेशन कर दिया, दीज ऑल आर मिक्सड टुगेदर। अब आपने जब इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे आप, तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कि बैक्टीरिया जो है यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, और ये क्लियर सुपरनेटेंट आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो गए, इसको हम बोलते हैं पेलेट, पेलेट। और ये जो ऊपर का क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। और ये क्या किसके बाद होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। So after you do this centrifugation, you get supernatant and the pellet, right? तो अब जब आप ये सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो नीचे चला आएगा, और ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसमें क्या रह जाएगा, आपका बैक्टीरियोफेज पार्टिकल रह जाएगा सुपरनेटेंट में। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सुपरनेटेंट को लिया और पेलेट को लिया, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लिया, इसको अलग निकाल लिया, ठीक है, सुपरनेटेंट को अलग निकाल लिया और पेलेट को नीचे रह गया। अब उसमें देखा कि रेडियो एक्टिविटी जो आपको सिग्नल है वो कहाँ मिल रहा है, सुपरनेटेंट में मिल रहा है या पेलेट में मिल रहा है। ठीक। तो आप ये देखिए यहाँ फर्स्ट पैनल में, इसमें जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना था वो डिटेक्ट हुआ कहाँ पे, सुपरनेटेंट में। ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जो सुपरनेटेंट है, यानी कि जो आउटर कैप्सूल है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव था, राइट। और आपको सुपरनेटेंट में मिल रहा है आपको रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब कि जो अंदर गया है, ठीक है, उसमें रेडियो एक्टिव नहीं गया, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरिया है, जो पेलेट मिला है उसमें आपको डिटेक्ट नहीं हुआ रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब जो सब्सटेंस, जो मटेरियल अंदर गया है इन्फेक्शन के दरमियान, दैट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव मटेरियल, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट द प्रोटीन। दूसरे वाले पैनल से क्या प्रूफ होता है, इससे इसमें ये देखा कि जो पेलेट है दैट शोज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल्स इन द पेलेट, बट इन द सुपरनेटेंट नो रेडियो एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड। सो व्हाट डज इट इंडिकेट, इससे ये पता चलता है कि जो डीएनए था उसके पैनल 2 में जो डीएनए था उसको आपने रेडियो एक्टिव लेबल किया था, ठीक। और यहाँ आपको पेलेट में रेडियो एक्टिव डिटेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि जो डीएनए है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है, वो पेलेट में आ गया है, यानी वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया है। दैट मीन्स अपॉन इन्फेक्शन द डीएनए हैज़ एंटर्ड द बैक्टीरियम and the supernatant which is made up the supernatant contains the bacteriophage host which is made up of the protein and there is no radioactivity detected in this। तो इसका मतलब ये हुआ कि it is actually the DNA which is entering inside the cell after infection, and it is actually the thing which is after entering the cell takes takes up the machinery of the cell and grows and multiplies
and makes more and more virus particles. So this also implies that it is actually the genetic information is hidden in the DNA, because the DNA alone which has entered and the protein has not entered. So this DNA which has entered is able to make new bacteria. So that means it is able to sort of इट इज़ एन एनालॉगी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप वहाँ देखते थे कि क्या हुआ था कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया है उसकी जगह पे क्या है, जो इन्फेक्शन है और उसके बाद जो वायरस ग्रो कर रहा है वो चीज़ है। सो इस तरह से हर्शी एंड शेज ने एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सेटअप में, यानी बैक्टीरियोफेज जिसके पास सिर्फ दो तरह के केमिकल हैं, प्रोटीन एंड डीएनए, उसको एक डिफरेंट तरह से रेडियो लेबल करके और ये प्रूफ कर दिया। और उसके बाद एवरीबडी एक्सेप्टेड दैट ओके, it is the DNA which is genetic material and not the protein, and the debate got resolved. Okay, so it is the DNA which is the genetic material and which is passed from virus to bacteria upon infection. So now after 1 year in 1952, after 1 year in 1953, the double helical model was proposed, and many details of the structure of DNA came out. So now let us go to another topic, which is properties of the genetic material. So we have seen that what are different uh, kind of the features or different kinds of the laws which were discovered, okay, by Mendel, by Morgan, by other people like codominance. Those things we have seen. So then in another set, in the section search for DNA as genetic material, we have seen these three beautiful experiments, how these people proved conclusively that it is actually DNA which is the genetic material, and people accepted it. Now we ask another question: is DNA always a genetic material? No. The answer is no. Why? Actually, some viruses contain RNA as genetic material. Okay, and for example, tobacco mosaic virus or TMV. Let me write it for you. Tobacco mosaic virus or TMV. Tobacco mosaic virus or TMV contains RNA as genetic material. Similarly, QB bacteriophage. So QB bacteriophage also contains the uh, RNA as genetic material. Polio virus also contains genetic material. Similarly, the SARS virus contains genetic material, and nowadays, which you are hearing, this COVID-19, okay, coronavirus, this also contains RNA as genetic material. Okay, so these all contain RNA as genetic material and not DNA. So, what are the now? Let us ask another question: what are the different requirements or the criteria for a substance to act as a genetic material? Okay, so now let us think a little bit. If some substance has to serve as a genetic material, first of all, the very first thing what it should be able to do, that it should be able to make itself, right? That means it should be able to generate its own copy or replica. So this is called as replication. What does it mean? इसका मतलब ये है कि जब जेनेटिक मटेरियल जो है उसको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो उसको अपनी कॉपी एग्जैक्ट तरीके से बनानी पड़ेगी। जब वो अपनी एक इक्वल ज़ेरॉक्स कॉपी बना लेगा
तो वो दूसरा कॉपी अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो नहीं बना सकता एग्जैक्ट सेम कॉपी, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग को फेथफुल्ली वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, राइट। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट कंडीशन इज द replication. So the genetic material should be able to direct its replication. Now let us see how DNA can direct its own synthesis or replication. As we have seen, DNA is a double stranded helical structure and it follows law of complementarity. यानी अगर हम एक सीक्वेंस आपको दे दें डीएनए का, तो आप दूसरा सीक्वेंस हमें बता सकते हैं वेरी इजीली, राइट। क्योंकि ए विल ऑलवेज बाइंड टू टी, जी विल ऑलवेज बाइंड टू सी, टी विल ऑलवेज बाइंड टू ए, सी विल ऑलवेज बाइंड टू जी। सो इस तरह से अगर आपको एक डीएनए का सीक्वेंस मिल जाता है तो आप दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना सकते हैं। तो आपको अगर डबल स्ट्रैंड में दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करके दे दिया जाए, तो आप दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना करके दो न्यू डीएनए बना सकते हैं और दोनों एक जैसे होंगे। तो यही है रेप्लिकेशन। इसी तरह से अगर आरएनए की बात की जाए तो उसमें टी की जगह पे यू होता है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, राइट। तो उसकी जगह पे उसकी हेल्प से आप उसका रेप्लिकेशन कर सकते हैं। बट नाउ लेट अस कम टू प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट ए स्ट्रिंग ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड अगर आपके पास एक है, दूसरा फिर है, तीसरा है, ये इस तरह से एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। अब आप उस अमाइनो एसिड की बेसिस पे दूसरा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बना पाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। So the very first criteria of replication is not fulfilled by the molecule of the protein. Then second criteria is stability. As we have seen even in the Griffiths experiment कि उसने जब हीट किल्ड किया, हीट में उसने बॉयल किया बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन को, तो क्या हुआ? दैट स्ट्रेन गॉट किल्ड एंड इट वाज नॉट एबल टू कॉज द न्यूमोनिया डिसीज इन द माइस। सो अगर जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल नहीं है, वो डैमेज हो जाता है, तो वो पूरी सेलुलर मशीनरी को का एक क्रूशल मॉलिक्यूल, क्रूशल इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल सर्व करना उसके लिए एक डिफ़िकल्ट बात होगी, राइट। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, आफ्टर हीटिंग दाउ द ऑर्गेनिज्म वाज डिस्ट्रॉयड, द बैक्टीरिया वाज डिस्ट्रॉयड, but the genetic material was not destroyed, and because of the stability of the genetic material only, it was able to transform the genetic material of the heat killed S strain, was able to transform the R strain into S strain eventually, right। तो यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो यू शुड नो कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर नॉट दैट मच स्टेबल एज द डीएनए। स्टेबिलिटी के हिसाब से आप प्रोटीन को अगर हीट दोगे या पीएच उसका चेंज करोगे तो प्रोटीन में क्या होगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लास्ट ईयर, you get bell shaped curve, right। So at higher temperature the proteins will denature, and usually most of the proteins after a certain level of the denaturation they will not renature again, so that means they will get damaged। वो पूरा उनका टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर वो बेकार हो गई प्रोटीन। इसी तरह से अगर आपने पीएच चेंज किया तो भी उस वही आएगा। लेकिन डीएनए में क्या है, आप अगर उसको हीट करोगे या उसको पीएच अगर थोड़ा डिफरेंट करोगे तो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। इट विल नो लॉन्गर रिमेन ए डबल हेलिक्स, बट एज यू प्रोवाइड बेटर कंडीशन और सुटेबल कंडीशन और सुटेबल काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स और मीडिया और सोल्यूशन, व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन रीअसेंबल, वो फिर से डबल हेलिक्स बना लेगा, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से रीएस्टैब्लिश कर लेगा। तो इस तरह से स्टेबिलिटी जो है वो डीएनए की ज़्यादा है और प्रोटीन की कम है। अनदर पॉइंट, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो उसमें सारा कुछ सेम है एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट वन न्यूक्लियोटाइड। डीएनए कंटेंस थायमिन, आरएनए कंटेंस यूरेसिल, ठीक है। लेकिन अगर बैकबोन के लेवल पे बात की जाए तो उसमें क्या है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है। तो दैट मीन्स आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH है। लेट मी ड्रा इट फॉर यू।
सॉरी। तो ये हमने पेंटोज रिंग बनाई, ये CH2OH हो गया। यहाँ पे क्या होगा, नीचे OH होगा 3' OH, ठीक है। और यहाँ पे जो 2' H या OH होगा, डिपेंड करता है, ये OH कभी होगा कभी नहीं होगा, राइट। तो जो डीऑक्सीराइबोज होगा वहाँ ये O नहीं होगा, जो राइबोज होगा वहाँ पे O प्रेजेंट होगा। तो RNA में राइबोज शुगर होता है, तो RNA में यहाँ OH होगा। तो ये OH है, ये तो फॉस्फेट के साथ बैकबोन के साथ बना लेगा बॉन्डिंग। ये OH है, ये भी फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो दीज टू OH विल बी ऑक्यूपाइड, दिस विल बी बॉन्डेड विद नाइट्रोजन बेस, ओके। This O is already occupied. So this OH remains free in case of ribose. In case of deoxyribose there is no OH. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DNA है उसके पास OH नहीं है, नो OH अवेलेबल। बट RNA के पास क्या है, इसके पास OH ग्रुप अवेलेबल है। तो RNA के पास OH ग्रुप अवेलेबल है, तो ये OH ग्रुप रिएक्ट कर सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ DNA विल बी मोर, stability of RNA will be lesser, and RNA will be more reactive. So RNA will be less stable than DNA but more reactive. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आप इसको याद कर लीजिए। RNA will be less stable than DNA but it will be more reactive than the DNA. The reason is the 2' OH group of the RNA and 2' deoxy group of the pentose sugar in the DNA. तो इसकी वजह से जो RNA है उसके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और उस रिएक्टिविटी की वजह से RNA के अंदर एक कैटालाइटिक नेचर भी आता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। RNA बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर, इवन जो राइबोसोम है उसके अंदर RNA जो है कैटालाइट एज ए कैटलिस्ट सर्व करता है। तो दैट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ द RNA इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय दिस 2' OH ग्रुप, ओके। नाउ so those are, now let us see viruses, right? so viruses में क्या है, कुछ viruses में DNA होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, कुछ viruses में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब आप ये बताइए कि RNA ज़्यादा रिएक्टिव है DNA से, तो जिसके अंदर, जिस वायरस के अंदर RNA होगा उसका वायरस का जो जीनोम है वो कम स्टेबल हुआ, राइट। तो अगर लेस स्टेबल होगा दैट मीन्स इट इज़ easy to change, right? Less stable means easy to change. And what is the change in the nucleotide sequence? It is called as mutation. So that means RNA is more prone to mutation. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, RNA इज मोर प्रोन टू म्यूटेशन। तो अगर म्यूटेशन RNA में ज़्यादा हो सकता है तो यू शुड नो दैट एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल का जब म्यूटेशन होता है देन ओनली यू गेट वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल, एंड इट इज़ द वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल विच विल प्रोवाइड द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और इन द traits, okay. And if you imagine that if there are no variation in the characters or if there are no variation in the traits of the organisms, what will happen, all will be same, all will be clones, right? And you should know that the clones are ecologically least stable. जो डाइवर्सिटी है, जिस ऑर्गेनिजम्स में, जिस स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी होती है उनके पास अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनका इवोल्यूशनरी एडवांटेज होता है। दैट मीन्स अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो इवोल्यूशनरी लेवल पे जिसके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व होगा, ठीक है। सो दे विल इवॉल्व फास्टर। ये सब पे नीट में क्वेश्चन बनता है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ DNA और RNA के डिफरेंस का, ठीक है। सो द viruses having RNA genome, they will mutate faster and they will evolve faster also. That means they will be more dangerous. That is why this SARS virus, COVID-19 virus, they are more dangerous.
दे आर एबल टू इवॉल्व वेरी फास्ट। HIV आज तक उसका मेडिसिन नहीं बना, क्योंकि RNA वायरस है, ये फ़ौरन जो है इवॉल्व म्यूटेट कर जाता है, चेंज कर लेता है अपना जेनेटिक मटेरियल, और इस तरह से वो इवोल्यूशनरी कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेता है कि वो हमको इन्फेक्शन करता रहे, और हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको अवॉइड कर जाता है, उसको सरपास कर जाता है। ठीक है। So till now we have discussed two or three main properties: replication, stability, and mutation. And there is a little bit more that we will discuss later in the next video lecture, because the video is getting longer and it will be difficult to upload for me. So okay, I think now you just listen this video very carefully. If you have skipped a little bit, or if you have not understood any point, please listen it again or go back. And if you don't understand even then please feel free to get back to me and ask me your doubts. Okay. Okay, thank you.